کیا کیپٹلزم نے دنیا کو بہتر بنایا یا کیپٹلزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جس نے دنیا کا ستیہ کر کے رکھ دی؟ ویلکم دوستو، پازیٹیو سے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سکسیس کیپٹلزم کا رہا ہے ڈی سینٹرلائزیشن۔ کیپٹلسٹ کنٹری میں ہر کسی کو آزادی ہے اپنا بزنس کھولنے کی۔ آپ بھی اپنا بزنس کھول سکتے ہو اور ہر سال ڈھیروں نئے بزنس کھولے جاتے ہیں۔ یہ سارے بزنس ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، یعنی ڈی سینٹرلائز ہوتے ہیں۔ انفیکٹ ایک دوسرے سے کمپیٹ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انوویشن ہوتی ہے۔ وہیں دوسری طرف کمیونسٹ سوشلسٹ کنٹریز جیسی سوویت یونین میں سب کچھ سرکار کی دورہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جو بھی میجر پروڈکشن ایریاز ہیں، انڈسٹریز ہیں، انہیں سرکار کنٹرول کرتی ہے۔ ایک پوائنٹ آف کنٹرول ہے، سینٹرلائزیشن ہے۔ اوپر بیٹھ کے کچھ چند لوگوں کے لیے پورے دیش میں پروڈکشن کو کنٹرول کر کے رکھنا، پورے دیش اکانومی کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ یہی ایک میجر ریزن مانا جاتا ہے کہ امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف کولڈ وار کیوں جیتے۔ سوویت یونین سینٹرل پلاننگ کی وجہ سے ان کی گروتھ کافی کم تھی امریکہ کے کمپیریزن میں، اور یہ جو ڈیرو ڈی سینٹرلائز بزنسز ہے کیپٹلزم میں، جب یہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے تو یہ ایک دوسرے سے کمپیٹ بھی کریں گے بیٹر بننے کے لیے۔ یہاں پر انہیں ایک فائنینشیل انسینٹیو ملتا ہے جو کہ پروفٹ ہے، اور اس پروفٹ کو کمانے کے لیے بزنسز اور اچھا کام کرنا چاہیں گے، اپنے سائیڈ والے سے بہتر کام کرنا چاہیں گے، جس کی وجہ سے انوویشن ہوگی۔ تو کیپٹلزم ایک فائنینشیل انسینٹیو پرووائڈ کرتا ہے جس سے انوویشن ٹریگر ہوتی ہے، اور اس انوویشن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ پچھلے 100-200 سال کی کیپٹلزم میں ہمیں ایک ایسی لیول کا ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملا ہے کہ پچھلے 2000 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا ہے ہیومن ہسٹری کی۔ آپ خود ہی سوچ کر دیکھیے، گاڑیاں، ایروپلین، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، کیمراز، ان سب کا انوینشن پچھلے 100-200 سال میں ہی ہوا ہے۔ کیپٹلزم کو فیور کرنے والے لوگ یہ بھی آرگیو کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پچھلے 50 سالوں میں بڑیا ماترا میں دنیا بھر کے پروٹین نیچے گئی ہیں، ایجوکیشن لیول لوگوں کا اوپر گیا ہے، اور لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ میں ایک بہت بڑا امپروومنٹ آیا ہے۔ ایک اور پازیٹیو پوائنٹ کیپٹلزم کا یہ رہا ہے کہ ہر کسی کو ایک سپنا دکھاتا ہے کہ اگر آپ کو اوپر تک پہنچنا ہے آپ بھی پہنچ سکتے ہو۔ ہر کسی کو موقع ملتا ہے اوپر تک پہنچنے کا۔ اگر آپ ہارڈ ورک کرو گے، محنت کرو گے، تو آپ بھی بل گیٹس، ایلن مسک جیسا بن سکتے ہو۔ جبکہ ایک سوشلسٹ کمیونسٹ سسٹم میں اس لیول کا امیر بننا آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کنزیومر کے لیے آپ کو کیپٹلسٹ سسٹم میں اور آپشن ملتے ہیں لائف کے ہر ریسپیکٹ میں۔ پاکستان کا ایک ایگزامپل لے کر دیکھو، ایک ٹائم تھا جب ٹی وی پر ایک چینل آیا کرتا تھا جو کہ دوردرشن سرکار کی دورہ چلایا جاتا تھا، لیکن جب ٹیلی ویژن سیکٹر کو کھول دیا گیا، پرائیویٹائزیشن کے لیے فری مارکیٹ رکھی گئی، آج کے دن آپ کے پاس کتنے آپشن ہیں، کتنے ٹی وی پر چینلز آتے ہیں، آپ کے لیے چوائسز بڑھ گئی، آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کی ویلیو بڑھ گئی۔ بہت سے لوگ دوستو آپ کو یہ سارے فائدے گنائیں گے کیپٹلزم کی جو میں نے آپ کو بتائے، اور اندھا دھن اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کریں گے، یعنی پرائیویٹائزیشن کو پروموٹ کریں گے۔ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیپٹلزم کی بہت سارے نقصان ہیں۔ انفیکٹ کچھ نقصان بہت زیادہ ہانیکارک بھی ہیں کہ وہ دنیا کو ختم کر کے رکھ سکتی ہیں۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہوں میں، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا فیلئر ہے کیپٹلزم کا مونوپلی اور انکومینوکوالٹی۔ کہنے کے لیے کیپٹلزم میں ڈی سینٹرلائزیشن ہے، آپ کے پاس آزادی ہے اپنا بزنس کھولنے کے لیے، لیکن ریئلسٹک کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بزنسز اکثر ایک دوسرے میں مر کر جاگ گئے۔ بڑے بزنسز اکثر چھوٹی بزنسز کو خرید لیتا ہے، تو ایسے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بزنس اپنے سارے کمپٹیشن کو خرید لے اور وہ ایک ہی کمپنی بن جائے۔ اگر سارا کمپٹیشن ختم ہو جائے گا اور ایک کمپنی پورے سیکٹر پر راج کرے گی تو اسے مونوپلی کہا جاتا ہے، اور ایسا اکثر کیپٹلزم میں بار بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ایک بار کسی کمپنی کو مونوپلی اسٹیبلشڈ ہو جائے تو وہ جنتا کے لیے بیکار خبر ہے، کیونکہ وہ کمپنی اپنا پرائسز بڑھا سکتے ہیں، جنتا کو ایکسپلوئٹ کر سکتی ہیں۔ جیسے کہ آج کے دن پاکستان میں کئی لوگ مانتے ہیں کہ جیو کے آلموسٹ ایک مونوپلی ایگزسٹ کرتے ہیں ٹیلی کام سیکٹر پر، باقی کمپنی اسے کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہی ہیں۔ کیپٹلزم میں ایک اور فریز ہے جو بار بار اکثر یوز کیا جاتا ہے، ایکوائر اور گیٹ ایکوائرڈ۔ ایک تالاب سمجھ لو جہاں پر آپ ایک مچھلی ہو، یا تو آپ اور مچھلیوں کو کھا کر ایک بڑی مچھلی بن جاؤ، یا پھر کوئی بڑی مچھلی آ کر آپ کو کھا جائے گی۔ کیپٹلزم میں کچھ اسی طرح سے ہی کام کرتے ہیں، یا تو آپ اور کمپنیز کو ایکوائر کرنا شروع کرو، اپنی کمپنی کو بڑا بنا لو، یا پھر کوئی بڑی کمپنی آپ کو آ کر کھا جائے گی۔ یاد ہے آپ کو ایک بڑی کمپنی ہوا کرتی تھی جیبون، اسے میمترا نے ایکوائر کر لیا تھا، اور میمترا کو فلپکارٹ نے بعد میں ایکوائر کر لیا تھا، اور اس کے بعد آیا انٹرنیشنل جینٹ امیزون۔
फ्लिपकार्ट के पास दो ऑप्शन थे, या तो अमेजोन उसे एक्वायर कर लिया, गोल्ड मार्ट उसे एक्वायर कर लिया। आज के दिन जितने बड़ी कंपनी है जिन्हें मोनोपोली कहा जाता है, वो मोनोपोली बनी किसी न किसी और कंपनी को एक्वायर करके। सोशल मीडिया में फेसबुक को मोनोपोली माना जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो कि दो सबसे ज्यादा यूज सोशल मीडिया एप्स हैं, वो फेसबुक के दौरा मुनट है। गूगल को भी मोनोपोली कहा जाता है इंटरनेट की दुनिया में, क्योंकि यूट्यूब जिसके दौरा आप ये वीडियो देख रहे हैं, गूगल के दौरा मुनट है। एंड्रॉइड गूगल के पास है गूगल मैप्स, गूगल शॉपिंग, गूगल पे, गूगल नॉन्स। इनफैक्ट जो गूगल के पेरेंट्स कंपनी है अल्फाबेट, उसने 241 कंपनीज को एक्वायर कर रखा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस पूरी सिस्टम से जबरदस्त इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, जहाँ पर जो अमीर लोग हैं, जो अमीर कंपनीज हैं, उनके पास सारी वेल्थ है, और जो बाकी छोटी बिजनेसेस हैं वो उन बड़ी कंपनी से कभी कम्पीट ही नहीं कर पाती। रियलिटी में कहने के लिए कैपिटलिज्म में कंपटीशन है, लेकिन रियलिटी में एक छोटा बिजनेस कहाँ इन मोनोपोलिस्टिक बड़े जायंट कंपनी से कम्पीट कर सकता है। पिछले 30-40 सालों से जब से न्यू लिबरलिज्म आइडियोलॉजी ने कमबैक किया है दुनिया भर में, इनकम इनइक्वालिटी पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से ऊपर गई है। 2017 में रिपोर्ट आई थी कि टॉप 1% लोग 82% नई वेल्थ जो जनरेट होती आज के दिन दुनिया में, उस पे कंट्रोल करते हैं। जो दुनिया के टॉप 42 सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास इतना पैसा है जितना आधी दुनिया की पॉपुलेशन के पास है। 3.5 बिलियन लोगों के पास है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3.5 बिलियन लोग बहुत आलसी लोग हैं और ये जो 42 लोग हैं ये इतना हार्ड वर्क करते हैं कि इतने अमीर बन गए। हार्ड वर्क चीज का सीधा सीधा लेना देना नहीं है। कैपिटलिस्ट सिस्टम ही इस तरह से काम करता है कि जिसके पास पैसा है वो और पैसा बना सकता है बड़ी आसानी से। मनी बिगेस्ट मनी वाली जो चीज थी। और दूसरे जो चीज बताई थी मैंने अभी आपको कि एक्वायर और गेट एक्वायर्ड, या तो आप छोटी मछलियों को खाकर खुद बड़े हो जाओ, या बड़ी मछली आकर आपको खाने लग जाएगी। और तीसरी एक और कहावत है, जैसा मनी बिगेस्ट मनी वैसी ही पावर्टी बिगेस्ट पावर्टी। और जो गरीब लोग हैं उनके पास कैपिटल ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर उनके पास पहले से ही पैसे नहीं होंगे तो उनके लिए ऊपर उठना बहुत मुश्किल चीज है। वो अपने एजुकेशन पर स्पेंड नहीं कर पाएगा, हेल्थ पर स्पेंड नहीं कर पाएगा, तो वो इवेंचुअली पैसे नहीं बना पाएगा। अब ऑफिशियली इस चीज को काउंटर करने के लिए बहुत सारे देशों की सरकारों ने एजुकेशन को फ्री किया है ताकि ये चीजें ना हो, लेकिन इसके बाद मैं आगे सोशलिज्म वाले वीडियो में करूंगा। अगला फेलियर और शायद सबसे बड़ा फेलियर कैपिटलिज्म का रहा है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और सोसाइटी एंड डिस्ट्रक्शन। अब जहां पर मैंने एक तरफ कहा था कि पॉवर्टी रेट बड़ी तेजी से नीचे गए हैं पिछले 100 सालों में, लिटरेसी एजुकेशन की रेट बड़ी तेजी से ऊपर गए हैं, वही पिछले 100 सालों में जितना इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय होती हुए हमने देखा है, उतना पिछले 2000 सालों में ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं देखा गया है। जिस स्पीड से जंगल काटे गए और बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हुई और क्लाइमेट चेंज बढ़ा, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कैपिटलिज्म में कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट पर ध्यान देती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कितने जंगल काटे जा रहे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे पूरे धरती का, जब तक उन्हें अपना प्रॉफिट मिल रहा है और वो और अमीर बनते जा रहे हैं। और यही प्रॉफिट की मार न सिर्फ धरती को खत्म कर रही है बल्कि हमारी सोसाइटी को भी बहुत खतरनाक नुकसान पहुंचाया है। कहने के लिए कंज्यूमर के पास चॉइस है, आजादी है चूज करने की, किस कंपनी से हमें क्या खरीदना है, हमारे मर्जी है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, कंपनी हमारे ऊपर ओले बरसाती है एड्स की, जैसे कि पूरी सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो बदल जाता है। एड्स में दिखाया जाता है कैसे केमिकल से लथपथ प्रोसेस्ड और फैटी बर्गर्स आपके लिए बड़ा अच्छा है, आप इसे खाओगे तो आपको खुशी मिलेगी। जब आप अपने आसपास पड़ोस में बहुत सारे ऐसे बर्गर के स्टोर देखोगे जहां पर ये बर्गर बिकता है, जब आपकी फ्रेंड और फैमिली यहाँ पे खाना खाना चाहेंगे तो आप भी खाना खाना चाहोगे, वहां पर ये बर्गर खाना चाहोगे, जैसे कि आपको ओबेसिटी हो। अमेरिका में आज के दिन 34% एडल्ट ओबेसिटी से सफर करते हैं। अगर हम लिस्ट ऑफ कंट्रीज देखें जहां पर कैंसर रेट काफी हाई है, अमेरिका नंबर 5 पर आता है। एक ऐसी कैपिटलिस्ट कंट्रीज जहां पर फ्री मार्केट दिया गया इन फास्ट फूड कंपनीज को, शुगरी ड्रिंक्स को, ब्रांड्स को, कि जो चीजें बेचना चाहे बेच सकते हैं, जैसी एड्स दिखाना चाहे दिखा सकते हैं जनता को प्रॉफिट कमाने के लिए। इनफैक्ट इसी प्रॉफिट की मार में आकर कंपनीज ने लोगों को बहकाया और ऐसी चीजें खरीदवाई जो लोगों के लिए बहुत हानिकारक थी, ऐसी चीजें जिनको लोगों को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके डिमांड क्रिएट करवाई गई एडवर्टाइजमेंट के दौरान। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है टोबैको और अल्कोहल कंपनीज, जो ऐसी एड्स देती है जिससे लोगों को लगे कि ये गुटखा खाने से मैं बड़ा प्राउड फील करूंगा, मेरे को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन हर एग्जाम्पल इतना एक्सट्रीम नहीं है, इससे कंज्यूमरिज्म की भी शुरुआत हुई।
आज से 50 साल पहले सोचिए दोस्तों, एक आम आदमी को किन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। सोसाइटी में क्या माना जाता था कि एक आम आदमी के पास यही चीज़ें होनी चाहिए और उस आदमी की लाइफ सेट है। एक घर, अच्छी जॉब और शायद अच्छा खाना खाने के लिए मिले। आज के दिन आपके पास कितनी और ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। जब तक आप एक रिस्पेक्टेबल लेवल पर आए सोसाइटी में, आपके पास एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होना चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, कम से कम 10 पेयर नए कपड़े होने चाहिए, जूते होने चाहिए, और हर साल हर 2 साल में आपको अपने कपड़े बदलने चाहिए। तभी आपको एक रिस्पेक्टेबल लेवल वाला माना जाएगा सोसाइटी में। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, आज से 50 साल पहले आपके दादा परदादा के पास कितने पेयर कपड़े जूते हुआ करते थे। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम लोगों को बार बार फोर्स करता है कि ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, सब कुछ खरीदो। जितना ज़्यादा खरीद सकते हो उतना अच्छा है। जितनी नई चीज़ें होगी आपके पास उतना अच्छा है। जितना लेटेस्ट आईफोन है, जितना लेटेस्ट गाड़ी का मॉडल है, जितना खरीदोगे उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन सारी कंपनीज को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये सिस्टम एक इनफाइनाइट कंजम्पशन के मॉडल पर काम करता है। जितने ज़्यादा लोग जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन रियलिटी में रिसोर्सेज फाइनाइट हैं, और यही रीज़न है एक बड़े स्केल पर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला है कैपिटलिज्म की वजह से। और यही सिस्टम आपकी इनसिक्योरिटीज़ को भी अटैक करता है चीज़ें बेचने के लिए। आपकी स्किन थोड़ी डार्क है तो ये लो ये फेयरलेस क्रीम खरीदो। आपकी स्किन पर थोड़े बाल ज़्यादा हैं तो ये लो ये नया लेजर ट्रीटमेंट खरीदो। आपके होंठ, नाक, मुंह वैसा नहीं है जैसा उस टॉप सेलिब्रिटी का है तो ये लो ये नया सर्जरीज खरीदो यहाँ पर। आपकी हाइट छोटी है तो ये लो ये नया हाइट बनाने की नया ड्रिंक खरीदो यहाँ पर। और फाइनली मैं बात करना चाहूँगा कैपिटलिज्म का जो फेलियर रहा है दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को प्रोटेक्ट करने में। अब अगर कम्युनिज्म से कंपेयर किया जाए तो कैपिटलिज्म आम तौर पे हिस्टोरी के लिए देखा जाए तो अच्छा फिट किया है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से। कम्युनिस्ट कंट्रीज में बार बार डिक्टेटरशिप देखने को मिली है, लेकिन कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी के साथ अक्सर साथ में काम किया है, क्राइव किया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कैपिटलिज्म में कोई डिक्टेटर्स नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन इन जनरल कैपिटलिज्म का बेटर रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इस सिस्टम का, इस आइडियोलॉजी का फेलियर हमें तब देखने को मिलता है जब कंपनीज इतनी बड़ी बन जाती है, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो सरकार से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएं। और ऐसी केस में कंपनीज सरकारों को ब्राइब कर सकती है, बड़ी आसानी से सरकारों को खरीद सकती है, इलेक्शन मैनिपुलेट्स करने में मदद कर सकती हैं। कंपनीज को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। अगर उन्हें देखे गया पर कि एक पॉलिटिशियन यहाँ पर जीतेगा तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, तो उस पॉलिटिशियन की फंडिंग करेंगे, उसके इलेक्शन कैंपेनिंग में सपोर्ट करेंगे। अब ये बड़ी ओपनली ऊपर से हो सकता है जैसा कि अमेरिका में होता है, इसे लॉबिंग कहते हैं। अमेरिका में करप्शन करना लीगल है, जो कि मेरा मानना है बहुत गलत चीज़ है। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में नीचे से होता है, स्पेशली जब से इलेक्ट्रॉन बोर्ड पास करी गई है। कौन सी कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रही है हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल सारी कंपनीज उस पॉलिटिकल पार्टी को जिताना चाहेंगे जहां पर उनको सबसे ज्यादा अपना फायदा दिखेगा। अब ये करप्शन हर रिस्पेक्ट में काम कर सकता है, किसी भी देश के लिए बहुत हानिकारक है। कंपनी सरकार को पैसे देकर ये कह सकती है कि जो फॉरेस्ट लैंड है ये हमें बेच दो, उससे सेल कर दो, ऑन सेल रख दो कि ये जो जंगल है सरकारें कर देंगे। कंपनीज कह सकती है कि इन रूल को इस तरह से बदल दो तस्ती की जनता को नुकसान हो लेकिन हमें फायदा हो, सरकारें कर देंगे। ये सरकारें बेसिकली पपेट बन जाएंगी कंपनीज के हाथों में। और यही इल्जाम अक्सर अमेरिका जैसा देशों पर भी लगाया जाता है। अब कैपिटलिज्म के इन सारे फेलियर से डील करने के लिए दुनिया भर के कंट्रीज ने अपने अलग अलग तरीके सोचे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाए। क्या है वो स्ट्रैटेजीज, इसकी बात मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा जिस पे मैं सोशलिज्म को समझाऊंगा। क्या रही है सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज जिन्होंने इस कैपिटलिज्म की, इससे निकलने वाले जो फेलियर है इन्हें काउंटर करने की कोशिश करी है। पसंद आए वीडियो तो शेयर कीजिए, कमेंट्स में लिख कर बताइए आपकी क्या राय इन आइडियोलॉजीज के बारे में।